A warm, fraternal and hearty welcome to all the intelligent people who are watching this video. Thanks for staying connected with me and dropping your messages in the chat box, showing your eagerness to watch my next video. So, in this video is very important. This is the fourth video and the last video of the hire purchase series. In this video, I'll be explaining you about default and repossession. That is, default of paying any installment by hire buyer and repossession of the goods by, or you can say seizing of the goods by the hire vendor. So without wasting any further time, let's get into the video. Let's begin with the topic. What is it all about? Default and repossession. When the hire buyer fails to pay the installment, then it is called default. जब हायर बायर अपनी कोई किस्त समय पर नहीं देता है या वो देता ही नहीं है तो उसे हम कहते हैं डिफॉल्ट. और ऐसे केसेस में सेलर जो कि हायर वेंडर है, ही विल टेक बैक द एसेट्स व्हिच इज कॉल्ड रिपोजेशन. वो अपना सामान वापस लेकर चला जाएगा. इसे कहते हैं रिपोजेशन. कई बार क्या होता है कि सामान उस किस्म का होता है जिसके कुछ टुकड़े नहीं किए जा सकते. सपोज एक ही गाड़ी है, एक ही ट्रक है, एक ही मशीन है. अगर किस्तें पे नहीं हुई तो वो पूरा का पूरा ट्रक ले जाएगा, पूरा का पूरा गाड़ी ले जाएगा, पूरा का पूरा मशीन ले जाएगा. उसके टुकड़े नहीं लेके जा सकता. लेकिन कुछ कई बार ऐसा होता है कि मशीनें 4 हैं, उसने कुछ किस्तें पे नहीं करी है तो कुछ मशीन बायर के पास छोड़ दी जाती हैं और कुछ लेकर हायर वेंडर चला जाता है. तो अगर वो सारा सामान ले जाए उसे कहते हैं फुल रिपोजेशन. तो पहले हम इसके बारे में बात करने वाले हैं. और अगर वो कुछ सामान लेकर चला जाए और कुछ बायर के पास वेंडर छोड़ के चला जाए तो उसे कहते हैं पार्शियल रिपोजिशन. दोनों ही समझने बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम में आते हैं और यही एकमात्र क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा. और ये पूरे चैप्टर का क्रक्स इसके अंदर आकर मिल जाता है. सो ये हमें जरूर पढ़ना है, यही आएगा इन एवरी एग्जाम. सो to explain you the topic, I hope you have watched my previous video in which I have explained the accounting entries for hire purchase system, in which I have explained you the journal entries as well as the ledger account, how you need to make them in the books of hire buyer and hire vendor. And you have also watched the video before my previous video in which I explained you how to calculate interest in different cases, how to make the table or you can say working note for the calculation of interest. So if you have not watched those videos, watch them first and then come back to this video. So what is this video all about? It is about default and repossession. So to explain you both the things, the full repossession and the partial repossession, I have picked up 2 different questions. One is about full repossession and one is about partial repossession, and we'll be doing both these questions in this video. Please watch very carefully with me. If at any point you are stuck, you can post your queries in the chat box. And if at any point you are stuck or you have missed something, please re-watch the video and explain it better to yourself. So let's start the question. What is this question all about? P, a hire buyer, purchased a truck for rupees 56,000. Payment to be made rupees 15,000 down and 3 installment of rupees 15,000 each at the end of each year. Rate of interest is charged at 5% per annum. Buyer depreciates the asset at 10% per annum on WDV method. P एक कस्टमर है जो कि हायर बायर है. इसने एक ट्रक खरीदा है 56,000 का, 56,000 का, और उसकी पेमेंट कुछ ऐसे देनी है 15,000 डाउन पेमेंट और 3 इंस्टॉलमेंट देगा. वो हर इंस्टॉलमेंट 15,000 की एक इंस्टॉलमेंट होगी. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज एट 5% पर एनम. मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% चल रहा है, जो ब्याज का इंटरेस्ट रेट चल रहा है. और बायर ने डिसाइड किया है कि वो अपने इस खरीदे हुए ट्रक को 10% पर एनम की रेट पर WDV मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा. बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, फाइनेंशियल क्रंच होने के कारण P, after having paid the down payment and the first installment at the end of the first year, could not pay the second installment. फाइनेंशियल क्रंच के कारण पी ने जब डाउन पेमेंट या बयाना दे दिया और जब पहली किश्त दे दी, उसके बाद वो दूसरी और उसके आगे वाली किश्त देने में असक्षम हो गया, अनकैपेबल हो गया, जिसकी वजह से सेलर
अपना ट्रक वापस लेकर चला गया। सेलर टुक बैक द पोजीशन ऑफ ट्रक एंड व्हाट डिड द सेलर डू? सेलर ने उस ट्रक के साथ क्या किया? सेलर आफ्टर स्पेंडिंग ₹350 ऑन द रिपेयर ऑफ द एसेट सोल्ड इट अवे फॉर 30,110। उसने 350 रुपए उस एसेट की रिपेयर में और खर्चा करके फाइनली उसको 30,110 पर फर्दर सेल किया। हो सकता है उसने इस प्रोसेस में कुछ प्रॉफिट कमाया हो और हो सकता है कुछ लॉस इनकर करा हो। तो जैसा भी हुआ होगा वो हमें क्वेश्चन करके पता चल जाएगा। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग अस? दे आर आस्किंग अस टू ओपन द लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज. Now, before starting with the question, first of all, I'll explain you working note for the calculation of the interest. I have prepared the working note immediately under the question because to utilize the page in an optimum manner. But in most of the cases, you usually prepare the working note at the end of the question by leaving a little space with just a little guess. थोड़ा सा अंदाजे से स्पेस को छोड़ के वर्किंग नोट एंड में ही बनाना सही रहता है। मैंने यही बनाया है क्योंकि मुझे पेज को अच्छे से यूटिलाइज करना था। सो द टेबल कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, आई हैव ड्रॉन 5 कॉलम्स: ईयर, टोटल कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट एंड प्रिंसिपल। आई एम रिपीटिंग दिस होल प्रोसेस। ये मैंने वैसे अपनी सेकेंड वीडियो में सिखाया है और इसके 4 मेथड्स हैं। 4 में से एक इस क्वेश्चन में दोबारा से आ गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो सेकंड वीडियो जो हायर परचेज सीरीज की है जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन के 4 मेथड सिखाए गए हैं वो प्लीज चारों जरूर करें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्या पता आपके क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज हो जाए। नाउ सो ईयर, टीसीपी, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट एंड प्रिंसिपल आर द कॉलम्स. नाउ विल बिगिन. फर्स्ट ईयर बिगिनिंग. $56,000 का ट्रक था। 56,000 में से उसने 15,000 डाउन पेमेंट दे दी। जब उसने डाउन पेमेंट दी है तब इस डाउन पेमेंट के अंदर किसी भी किस्म का इंटरेस्ट शामिल नहीं है। दिस मीन्स जो इंस्टॉलमेंट है वो प्रिंसिपल के बराबर है क्योंकि इस किश्त के अंदर, इस डाउन पेमेंट के अंदर इंटरेस्ट ₹0 है। जब उसने डाउन पेमेंट दे दी है तो उसके बाद 41,000 रुपीज देना पेंडिंग रह गया है। मार्केट के 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इस बाकी बचे हुए पैसे पे जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो कि पे करना बाकी रह गया है, 5% रेट के हिसाब से द इंटरेस्ट ड्यू विल बी ₹2,050. If the interest due is ₹2,050 and it is fixed that the installment will always be of ₹15,000, तो अगर 15,000 की इंस्टॉलमेंट के अंदर 2,050 इंटरेस्ट का कंपोनेंट है तो प्रिंसिपल का कंपोनेंट होगा 12,950. 12,950 जब हम यहाँ से डिडक्ट करते हैं जो कि उसने बेसिकली पहली इंस्टॉलमेंट के अंदर फर्स्ट ईयर के एंड में उसने ये इंस्टॉलमेंट दी है, जब उसने पहली इंस्टॉलमेंट के अंदर ये प्रिंसिपल पे किया है तो उससे हमें ये पता चलता है कि ₹28,050 अभी देने बाकी रह गए हैं। और मार्केट के 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ये पता चलता है कि सेकंड किश्त के टाइम पर उसने जो ब्याज देना था वो ₹1403 देना था, बट उसने कुछ भी नहीं दिया। तो देयर इज नो नीड ऑफ मेकिंग द टेबल फर्दर बिकॉज हमारा काम, हमारी रिक्वायरमेंट यहीं तक पूरी हो जाती है। हमारा क्वेश्चन के हिसाब से उसने डाउन पेमेंट दिया, पहली किश्त दी, उसके बाद टाई फिश, उसने और कुछ नहीं दिया तो आगे टेबल को कंटिन्यू करके अपना टाइम कृपया ना वेस्ट करें। Now, the ledger account. First of all, I'm making the books of hire buyer जो कि है मिस्टर P. इनकी बुक्स में बनेंगे 2 अकाउंट, एक बनेगा एसेट का अकाउंट जो कि है ट्रक जो उसने खरीदा है, और एक बनेगा हायर वेंडर का अकाउंट जिससे उसने ये ट्रक खरीदा है। तो एसेट जब खरीदने की एंट्री करते हैं, एसेट डेबिटेड और यू कैन से ट्रक डेबिटेड टू हायर वेंडर। उसने कितने का ट्रक खरीदा है उसी हम एंट्री टीसीपी टोटल कैश प्राइस पर खरीदेंगे। उसने ये ट्रक खरीदा है ₹56,000 का। Now the similar entry will be cross posted in the hire vendor account also by the name by truck account, or you can say by asset account, that is with ₹56,000. अब क्या हुआ था इस तारीख पर? जिस तारीख पर उसने ये एसेट खरीदी है साथ के साथ वो अपने वेंडर को पहला डाउन पेमेंट देकर आया है। तो टू कैश अकाउंट डाउन पेमेंट, ब्रैकेट में डाउन पेमेंट, एंड ही पेड ₹15,000. नाउ
एक ईयर बीत जाता है, एक साल बीत जाने के बाद तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे, इस ट्रक के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन अगर मैं 10% के हिसाब से WDV मेथड पे चार्ज करती हूँ तो पहले साल डेप्रिसिएशन लगता है 5600 रुपीज और हम इस बैलेंस को कैरी डाउन कर देंगे और बच जाएगा 50,400 जो कि अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। So I'm closing this account. Now in the next year, the opening balance will be to balance brought down 50,400. Then उसके बाद फिर से टाइम आ गया डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। WDV मेथड यूज करता है तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5040 5,040 रुपए। और अब हम चलते हैं अपने हायर वेंडर अकाउंट की तरफ। हायर वेंडर अकाउंट में जब उसने पहला डाउन पेमेंट दे दिया था, एक साल के बीत जाने के बाद सबसे पहले उसको अपना खर्चा ड्यू करना था। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर अकाउंट, ऐसी मैंने एंट्री आपको समझाई है अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बिकॉज इंटरेस्ट खर्चा है तो इंटरेस्ट डेबिटेड और उतनी अमाउंट से हायर वेंडर क्रेडिटर बन जाएगा तो इंटरेस्ट डेबिटेड टू हायर वेंडर। और जब हम इसको इसमें पोस्ट करेंगे तो एंट्री बन जाएगी बाय इंटरेस्ट अकाउंट। हमारे टेबल के हिसाब से पहले साल जो इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 2050, जो कि इसने सक्सेसफुली पे करा है और आपकी एंट्री हो जाती है टू कैश अकाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इट विल बी ₹15,000. So I will write 15,000 here. And now it's the time to check what is pending. क्या देना बाकी रह गया है? So to balance carried down, 28,050 rupees is the amount which is left to be paid. So the total of this side is 58,050 and this side also 58,050. Then after that, I will write down by balance brought down 28,050. 28,050 जब balance brought down किया है, it's time to make the interest due for the second installment. Interest due जो अगली बार का है उसकी बारी आ गई। 1,403 रुपए इंटरेस्ट बनता है, पर इसकी हो गई टाइम टाइम फिश। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज और क्रंच के कारण ये इसने इंटरेस्ट तो ड्यू किया बट वो कुछ भी नहीं दे पाया। तो क्या यहाँ टू कैश किया जाएगा? बिल्कुल नहीं, उसने तो कुछ नहीं दिया। तो अब ये जब ट्रक बिजनेस में आया था तो आपने लिखा था बाय ट्रक। जब हायर वेंडर ट्रक लेकर चला गया तो आपको लिखना होगा टू ट्रक। अब समस्या ये आती है कि ये अमाउंट कितना आएगा, ये कितने पे लेके गया। आपको क्या करना है, सिंपली इस साइड का टोटल करना है 29,453। क्योंकि हमें क्वेश्चन में कुछ भी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई कि ये कितने वैल्यू पे लेकर गया है, तो वैल्यू मेरे टेबल के हिसाब से निकल कर आती है कि वो लेके गया है 29,453। इतने पर मिस्टर हायर वेंडर अपना ट्रक वापस लेकर चले गए, बिकॉज दिस इज दी बैलेंसिंग फिगर। जितने पर वो वापस लेके चले गए तो आपको इसे क्रॉस पोस्ट करके एस ट्रक अकाउंट के अंदर भी लिखना है, क्योंकि ये गया, ये बिजनेस से चला गया। तो आपको लिखना है जब खरीदा था तो था टू हायर वेंडर, जब हायर वेंडर वापस ले गया तो आप लिखेंगे बाय हायर वेंडर। अब अगर हायर वेंडर अपना सामान लेकर चला गया तो बेचारे मिस्टर पी को नुकसान हो गया। जो मिस्टर पी को नुकसान हुआ है वो हमें इस तरफ से पता चल पा रहा है कि क्योंकि इसने किश्तें दे दी थी और किश्त का 1 रुपया भी वापस नहीं मिलता है, तो पता चलता है बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर है, ये है लॉस ऑन डिफॉल्ट। अपनी ही गलती के कारण, पैसा समय पे ना देने के कारण इसको 15,907 रुपए का लॉस हो गया है और दोनों साइड का टोटल है 50,400 and 50,400. So that is how we will make the account in the books of hire buyer, and this is the case of full repossession. पूरा का पूरा साबुत ट्रक वापस चला गया। Now it's the time to make the books of hire vendor, क्योंकि इसने इस ट्रक को अपने पास नहीं रखा, इसने भी ट्रक का आगे कुछ सेल कर दिया। हमें चेक करना पड़ेगा कि इसको फायदा हुआ या नुकसान। और एक बात ध्यान देने वाली है, जब हम हायर बायर के अकाउंट बनाते हैं तो जैसा हायर बायर के अंदर हायर वेंडर बनता है वैसे ही हायर वेंडर बुक्स बनाते हैं और हायर वेंडर की बुक्स के अंदर हायर बायर कुछ ना कुछ बिल्कुल इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी जैसा अकाउंट है। इसकी सारी क्रेडिट साइड इसकी डेबिट बन जाएगी और इसकी डेबिट साइड इसकी
क्रेडिट बन जाएगी। लेकिन कुछ शब्दों का हेरफेर है, यहाँ पे था बाय ट्रक बट यहाँ पे आएगा टू सेल्स, क्योंकि हायर वेंडर के लिए तो ट्रक का जाना उसका सामान बिकने के बराबर है, इसलिए टू सेल्स। जब इसने सामान बेचा था मिस्टर पी को, तो उसने एंट्री करी थी पीज अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, यहाँ पे सामान जा रहा है तो टू सेल्स। तो टू सेल्स ये एंट्री इसने टीसीपी पे करी थी, तो इसने 56,000 का सामान बेचा। जब इसने ये सामान बेच दिया, साथ के साथ मिस्टर पी से इसने कैश भी रिसीव कर लिया। तो आप लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, इसने बयाना रिसीव किया, डाउन पेमेंट रिसीव करी, ये है 15,000 रुपए। देन बारी आती है पहली बार इनकम ड्यू करने की। इसकी इंटरेस्ट की इनकम ड्यू हो गई, 1 साल बीत जाने के बाद इसको इंटरेस्ट का अधिकार बनता है, तो 2,050 रुपए इसका इंटरेस्ट का अधिकार बना, और साथ के साथ इसको बिल्कुल प्योर तरीके से पैसे भी मिल गए। तो इसको पहली इंस्टॉलमेंट मिल गई 15,000 रुपए की, जिसके अंदर ये 2,050 का इंटरेस्ट शामिल है। और अब इसने ये चेक करना है कि अब मेरे डेटर, मेरे कस्टमर मिस्टर पी ने मुझे कितना पैसा देना बाकी रह गया है। इट इज 28,050 रुपीज। जो 28,050 रुपीज देना रह गया, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, और ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो आपका दोनों साइड का टोटल बनता है 58,050 एंड 58,050। नाउ you will write it on the debit side, to balance brought down 28,050 rupees. उसके बाद इट्स टाइम टू मेक द इंटरेस्ट ड्यू। अपनी दूसरी बार अपनी इनकम ड्यू कर रहा है। 1,403 रुपए का इसका अधिकार है ब्याज का, क्योंकि इसने सामने वाले को ट्रक तो दे दिया पर वो भी हायर परचेज सिस्टम पर, तो इसका इंटरेस्ट एक इनकम ड्यू हो गई। जब उसने इंटरेस्ट अकाउंट ड्यू किया, मिस्टर पी ने उसके साथ धोखा किया, क्योंकि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के कारण वो सामान वापस नहीं दे पाया। तो अब सामान वापस नहीं दे पाया, तो पहले था सेल्स, ये एक तरह से सेल्स रिटर्न कह दो, या हम इसका नाम हमने रखा है गुड्स रिटर्न या रीपोजेस्ड अकाउंट। तो मैंने दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हो, मैंने लिखा है गुड्स रिटर्न अकाउंट। ये आपका है बैलेंसिंग फिगर। तो आपका इस साइड का टोटल जो है वो ही दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपका 29,453 पर मिस्टर हायर वेंडर पी से अपना ट्रक वापस लेकर आ जाएंगे। बट ये चुप करके बैठेगा नहीं, इस ट्रक को अपने पास संभाल के नहीं रख लेगा, इसको तो सामान बेचना ही है, चाहे पी को चाहे किसी और को। सामान का पी से उठाकर लाने पर गुड्स रिटर्न के अंदर डेबिट वर्ड कम्स इन, सो गुड्स रिटर्न डेबिटेड किससे आए हैं, ये सामान पी के घर से आया है, तो टू पीज अकाउंट। तो टू पीज अकाउंट 29,453 आई हैव क्रॉस्ड पोस्टेड दिस। देन उसके बाद इसने क्या किया, इसने इस सामान के ऊपर खर्चा किया। तो इसका क्या जा रहा है, इसका कैश जा रहा है। तो टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में रिपेयर्स, इसने इसके ऊपर 350 रुपीज का खर्चा किया। उसके बाद क्या किया इसने इस सामान को अपने पास नहीं रखा बल्कि इसे बेच डाला। तो इसको क्या मिला, पैसा मिला। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स रिटर्न अकाउंट, तो इसीलिए ये जर्नल एंट्री पोस्ट हो जाएगी बाय कैश अकाउंट। तो आपका अमाउंट आ जाएगा 30,110 रुपए। आपकी दोनों साइडों का टोटल है 30,110। अगर हम टोटल दोनों तरफ 30,110 लिखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि डेबिट साइड पे 307 रुपए कम पड़ रहे हैं। तो ये क्या है, बेसिकली दिस इज द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द हायर वेंडर। सो यू विल राइट डाउन टू P&L अकाउंट ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, और आप ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रीपोजिशन या प्रॉफिट ऑन sale, whatever suits you. So that is how the question of full repossession is done. Now I will tell you about the question of partial repossession. Now, partial repossession. So I have picked up a question in which only partial goods, only few items will be taken back by the seller, but not the whole of the items. So here again I have taken the customer Mr. P. P purchased four cars of rupees 14,000 each on hire purchase system. The hire purchase price for all the 4 cars was 60,000 rupees. इन 4 गाड़ियों का HPP हायर परचेज प्राइस 60,000 है, जो कि दिया जाएगा कुछ इस तरह 15,000 डाउन पेमेंट और 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 15,000 ईच। तो हो गए 60,000, दैट इज 15,000 प्लस 3 into 15,000 दैट इज 45,000। सो 15,000 प्लस 45,000 is 60,000.
Interest is charged at the rate 5% per annum. Buyer depreciates the car at 10% per annum on straight line method. बायर अपनी गाड़ी को जो गाड़ियां खरीदी है उसको 10% पर एनम की रेट पर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हुए डेप्रिसिएशन लगाएगा. आफ्टर हैविंग पेड द डाउन पेमेंट एंड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट और पहली किस्त देने के बाद बायर कुड नॉट पे दी सेकेंड इंस्टॉलमेंट, वो दूसरी और उसके बाद अगली नहीं दे पाया. एंड व्हाट हैपेंड, सेलर took back his goods, seller took back the possession of 3 cars. लेकिन ऐसे ही नहीं, किसी भी वैल्यू पे नहीं, उन्होंने आपस में म्यूचुअली एक वैल्यू एग्री करी, डिसाइड करी एट एन एग्रीड वैल्यू टू बी कैलकुलेटेड आफ्टर डेप्रिशिएटिंग कार्स एट 20% पर एनम ऑन WDB मेथड. मतलब वेंडर ने मिस्टर पी को कहा है मैं अपनी गाड़ियां वापस लेके जाना चाहता हूं, बट मैं जो वैल्यू निकालूंगा, तुमने मेरी गाड़ियों को बहुत इस्तेमाल किया है, मैं 10% डेप्रिसिएशन नहीं, मैं तो 20% लगाऊंगा और तुम्हारी तरह स्ट्रेट लाइन नहीं, मैं तो WDB के हिसाब से वैल्यू काटूंगा, फिर मैं देखूंगा कि मैं कितने पे अपनी गाड़ियां वापस लेके जाता हूं. सो 1 कार वॉज लेफ्ट विद द बायर, बायर के पास सिर्फ एक ही गाड़ी बची. सेलर ने जो 3 गाड़ियां वो वापस ले गया. सेलर आफ्टर स्पेंडिंग ₹1200 ऑन रिपेयर्स सोल्ड अवे ऑल द 3 कार्स टू एक्स फॉर ₹35,000. सेलर ने 1200 रुपए रिपेयर्स पर खर्च करने के बाद तीनों की तीनों गाड़ियां किसी मिस्टर एक्स को 35,000 में बेच दी. आपको दोनों पार्टीज की बुक्स में लेजर अकाउंट बनाना है. तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे वर्किंग नोट, अगेन बिल्कुल वही वाला जैसे मैंने आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखाया है. So the columns are year, TCP, interest, installment and principal. In the beginning of the first year, the total cash price of the 4 cars was ₹56,000. And what did Mr. P do? He made the payment of 15,000 as down payment and there was no interest included in this down payment. डाउन पेमेंट इनसे पहली तारीख पर ही हो रहा है, इसके अंदर कोई भी ब्याज शामिल नहीं है. तो जो आपका इंस्टॉलमेंट गई है, डाउन पेमेंट के नाम की जो किस्त गई है, वो ही आपका प्रिंसिपल है, वो ही आपकी इंस्टॉलमेंट है. जब उसने पहली इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट दे दी है तो 41,000 देना बाकी रह गया है और मार्केट के 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसको ₹2,050 इंटरेस्ट अगली इंस्टॉलमेंट में देना है. सो द वेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब जानी है वो है 15,000 की. इस 15,000 के अंदर अगर 2,050 आपका इंटरेस्ट का कंपोनेंट है तो आपका प्रिंसिपल का कंपोनेंट हो गया 12,950. 12,950 कंपोनेंट आप यहां से लेस करेंगे. सो व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट दैट इज लेफ्ट टू बी पेड? इट इज ₹28,050. और 5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अब कितना ब्याज ड्यू बनता है? ₹1403. टेबल को आगे बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से मिस्टर पी ने सिर्फ डाउन पेमेंट दिया, सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी, उसके बाद उसने कुछ भी नहीं दिया. तो हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें इतनी ही कैलकुलेशन की जरूरत है, इतना ही हमारे लेजर अकाउंट में यूज होगा. अब बात आती है, ये एक सेकंड वर्किंग नोट है. वर्किंग नोट आप थोड़ा अंदाजे से स्पेस छोड़ के क्वेश्चन के एंड में ही बनाए. मेरे पास यहाँ स्पेस थी इसलिए मैंने बनाया है. सो द वैल्यूएशन ऑफ 3 कार्स टेकन अवे बाय द हायर वेंडर. 3 गाड़ियां जो हायर वेंडर ले गया है उनकी कीमत हम कैसे निकालेंगे? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कार्स इज 14,000 into 3, that is ₹42,000. 42,000 रुपीज के ऊपर उसने कहा है मैं तो 10% नहीं, मैं तो 20% लगाऊंगा. डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर पे अगर 20% डेप्रिसिएशन 8,400 बनता है तो उसको 33,600 रुपए उसकी अगले साल की शुरुआत में वैल्यू रह जाती है. देन फिर से डेप्रिसिएशन एट 20% पर एनम फॉर सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर पर भी अगर 20% डेप्रिसिएशन दैट इज 6,720 रुपए, 6,720 लेस करते हैं. सो द वैल्यू एट विच हायर वेंडर विल टेक बैक दीज 3 कार्स, इट विल बी 26,880 और ये हमारा लेजर में यूज होगा. Now the third working note that will be required in this question is जो हायर बायर है, जो मिस्टर पी है, उसके पास 4 गाड़ियां थी. 4 में से 3 तो वेंडर ले गया वापस, एक उसके पास बच गई. अब उस एक की वैल्यू उन 4 के अंदर से अलग करके लास्ट में बैलेंस कैरी डाउन करना मुश्किल है, इसलिए
हमारे कैलकुलेशन में एरर ना हो तो बेटर है कि हम उस एक गाड़ी का काम अलग से कर लें। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन कार इज, एक गाड़ी की कीमत कितनी है? 14,000 रुपए। अगर एक गाड़ी की कीमत 14,000 है और ये मिस्टर पी डेप्रिसिएशन लगाता है ओनली 10% पर, और वो भी फॉर फर्स्ट ईयर एट स्ट्रेट लाइन मेथड। ये तो स्ट्रेट लाइन पे लगाता है, तो 1400 रुपए एक साल के, दोबारा से डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% वो सेकंड ईयर के लिए, और वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से दोबारा से 1400। तो 2 बार 1400 कटने से इस एक आखिरी गाड़ी जो उसके पास रह गई है उसकी वैल्यू रह जाती है 11,200। नाउ लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ हायर बायर, जो कि कस्टमर है। जब उसने गाड़ियां खरीदी तो इसने एंट्री करी कार्स अकाउंट डेबिटेड। किससे खरीदी? हायर वेंडर से खरीदी, टू हायर वेंडर। तो इसने कितने में खरीदी? 56,000 की ये गाड़ियां आई हैं 4। इसने स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से साल के अंत में डेप्रिसिएशन लगाया है 5600 रुपीज, और अब इन चारों गाड़ियों की जो वैल्यू रह जाती है दैट विल बी बाय बैलेंस कैरी डाउन 50,400। सो द टोटल ऑफ बोथ द साइड इज 56,000। नाउ ही विल राइट डाउन द ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,400, और वो फिर से लगाएगा डेप्रिसिएशन ऑन दी स्ट्रेट लाइन मेथड, लगाएगा बाय डेप्रिसिएशन 5600 रुपीज, और यहाँ वो रुक गया। क्यों? क्योंकि आ गया वो टाइम जब हायर वेंडर अपना सामान वापस लेके चला गया। कितने पे लेके गया? बाय हायर वेंडर ये अपनी 3 गाड़ियां वापस लेके गया है। ये मुझे पता चला है वर्किंग नोट नंबर 2 से पता चला है। 26,880 में ये अपनी गाड़ियां वापस लेके गया, और मुझे वर्किंग नोट 3 से पता चला है कि बाय बैलेंस कैरी डाउन जो एक गाड़ी इसके पास वापस रह गई है वो गाड़ी की कीमत इस बचती है 11,200 रुपए। अगर क्रेडिट डेबिट साइड का टोटल है 50,400, बट क्रेडिट का टोटल कम पड़ रहा है। कितने से कम पड़ रहा है? ये कम पड़ रहा है 6,720 रुपीज। तो ये क्या है? ये इस बेचारे को हो गया है नुकसान। तो आप लिखेंगे बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, एंड दिस इज लॉस। दिस इज लॉस ऑन रिपोजेशन। ये निकल कर आया है लॉस। सो ये बैलेंसिंग फिगर 6,720 का इसको हुआ है नुकसान। सो बात आती है हायर वेंडर अकाउंट की। हायर वेंडर कैसे बनाया जाएगा? जब उसने सामान खरीदा तो क्रॉस पोस्ट करके यहाँ पे आ जाएगा बाय कार्स अकाउंट। बाय कार्स अकाउंट 56,000 की गाड़ियां खरीदी और साथ के साथ पहली डाउन पेमेंट दी। टू कैश अकाउंट 15,000 रुपए उसको थमाकर आ गया। देन टाइम आता है इंटरेस्ट ड्यू करने का। साल के अंत में इंटरेस्ट बनता है 2,050 रुपीज, और दे दी उसने पहली किस्त टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ऊपर वाले का नाम था डाउन पेमेंट। तो उसने दोबारा से 15,000 रुपए वेंडर को पकड़ाए, और अब कितने देने बाकी रह गए वेंडर को? 28,050 रुपीज। 28,050 रुपीज देने रह गए। दोनों साइड का टोटल है 58,050 एंड 58,050। अब उसके बाद वो लिखेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,050 रुपीज। देन बारी आ गई दोबारा से इंटरेस्ट का खर्चे को ड्यू करने की। तो ही विल राइट डाउन बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1403। लेकिन उसने कुछ भी नहीं दिया बट गाड़ियां तो वापस कर दी। तो हायर वेंडर से जब सामान लिया था तो लिखा था बाय कार्स अकाउंट, और जब वो सामान लेके जा रहा है तो हम लिखेंगे टू कार्स अकाउंट। तो वो सामान कितने पे लेके गया? 26,880 रुपीज। ये फिगर जो है ये दोनों फिगर सेम है। सो 26,880 पे वो ले गया। तो टू बैलेंस कैरी ऑन, अभी भी थोड़े से इनका हिसाब किताब आपस में चलेगा, ऐसा मुझे इस फिगर से पता चल रहा है। 2,573 रुपीज अभी भी हायर वेंडर को ये मिस्टर पी देंगे, चाहे कभी दें, पर हमारे क्वेश्चन के हिसाब से तो देंगे। 29,453 रुपीज। सो द बुक्स ऑफ
hire buyer are over. Now it is the turn of making the books of hire vendor. हायर वेंडर की बुक्स में बनेंगे दो अकाउंट, एक मिस्टर पी का अकाउंट और एक गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट. तो ये पी अकाउंट कुछ वैसा ही है जैसे हायर वेंडर के अकाउंट हायर बायर की बुक्स में बना था, उसी की डुप्लीकेट कॉपी है. तो आप बनाएंगे, सबसे पहली एंट्री है पीज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. उसने गाड़ियां बेची. कितने में बेची? 56,000 में बेची. गाड़ियां बेचने के बाद उसने पहले ही डाउन पेमेंट रिसीव करी. सो बाय कैश अकाउंट डाउन पेमेंट उसने 15,000 रुपीज डाउन पेमेंट रिसीव करी. 15,000 डाउन पेमेंट रिसीव करने के बाद उसने पहली बार अपनी इंटरेस्ट की इनकम को ड्यू किया है. तो टू इंटरेस्ट अकाउंट उसकी इंटरेस्ट की इनकम ड्यू जो हुई थी फर्स्ट ईयर में वो थी 2050 और उसको सक्सेसफुली पहली किस्त अपने कस्टमर से मिल गई. बाय कैश अकाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिसके अंदर ये 2050 का ब्याज शामिल है. अब कितना लेना बाकी रह गया अपने कस्टमर से? बाय बैलेंस कैरिड ऑन इस कस्टमर ने 28,050 रुपीज वेंडर के अभी भी देने हैं. दोनों साइड का टोटल है 58,050 रुपीज एंड 58,050 रुपीज. देन आफ्टर दैट ही विल राइट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,050 or now it is the time to make the interest income due for the second year. So to interest account 1403 but इसने तो ये पैसे दिए ही नहीं और ये तो गाड़ियां वापस ले आया. तो आप लिखेंगे बाय गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट. सामान जब बेचा था तो टू सेल्स अकाउंट, जब वापस ले आया तो ये कोई सेल्स रिटर्न नहीं है, ये कोई डिफेक्टिव सामान नहीं है जो मुड़कर रिटर्न होकर वापस आ गया. ये तो है गुड्स जो कि सीज कर ली गई है, फोरफीट कर ली गई क्योंकि सामने वाले ने अपनी इंस्टॉलमेंट को पे करने में डिफॉल्ट कर दिया. तो बाय गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट 26,880 और ये अब आपके पास बाय बैलेंस कैरिड ऑन दिस मीन्स 22,573 रुपीज अभी भी आपके कस्टमर मिस्टर पी से हायर वेंडर ने लेने हैं. सो द टोटल ऑफ बोथ द साइड इज 29453. उससे पता चलता है कि 2,573 रुपए अभी भी मिस्टर पी से ये लेगा. लेकिन इस गाड़ियों का ये करेगा क्या? ये गाड़ियों को अपने पास नहीं रखेगा, इसने आगे गाड़ियों को बेचना ही है. तो जब गुड्स रिपोजेस्ड पी के अकाउंट में इधर आया तो क्रॉस पोस्टिंग करके आपकी एंट्री गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन. तो गुड्स रिपोजेस्ड बिजनेस में आई, किधर से आई? पी से आई, टू पीज अकाउंट. तो 26,880 पर ये सामान अब बिजनेस में आया. इसके ऊपर इसने 1,200 रुपए रिपेयर्स के खर्च करे हैं. सो टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में रिपेयर्स, ये इसने 1,200 रुपए खर्च करे हैं. 1,200 रुपए खर्च करने के बाद इसने इन गाड़ियों को बेच दिया है मार्केट में फर्दर. कितने में बेचा? बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में सेल. उसने इनको बेच दिया है गाड़ी कार्स को 35,000 रुपीज में. अगर उसने 35,000 में से बेच दिया तो उसने इस पूरे प्रोसेस में क्या कमाया है? उसने कुछ फायदा अर्न कर लिया है. उसने कमा लिया है, he has earned the profit of 6,920 rupees. So you will write down to P&L account ब्रैकेट में profit on repossession comes sale. So that is how you will do the whole question of partial repossession and it is over. I hope आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया है. अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके पूछ लीजिए. और अगर आप ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से वीडियो को दोबारा वॉच करके एक बार देख लेंगे तो आपका समझिए ये टॉपिक रेडी हो गया. मैंने ट्रक और गाड़ियों की वैल्यू बहुत कम रखी थी फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए. आप अपने आप से और प्रैक्टिस करके देखिए एंड आप मुझसे कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं. Thanks for watching and stay connected for further chapters. I'll be preparing next, I'll be picking up next chapter in the next video and stay tuned with me. Bye bye for now.